Good morning and Assalamu alaikum everyone. I am Mahnoor Khan, the president of UMT BioWare Society. On behalf of UMT Life Sciences Department and BioWare Society, I welcome our speaker, Sir Hasib Nassar, who will be presenting a webinar on analysis of microarray data with GEO2R and cytoscape network analysis with hub bottlenecks from protein-protein interaction data. Before inviting Sir Hasib Nassar, I'd like to give a little intro of him. Hasib Nassar is a final year PhD student from Institute of Biochemistry and Biotechnology, University of Punjab, and research associate at KRSS UMT Lahore. His research is mainly focused on next generation sequencing to solve and develop personalized medicine for both complex and rare diseases. His research involves a lot of computational biology and data science open access platforms for predicting disease-associated biomarkers. Hasib has previously spent more than 6 months at Technical University Denmark at the Department of Applied Mathematics and Computer Science for his research work and data analysis. Sir Hasib Nassar, I welcome you. I invite you to start presenting it. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Do you are able to hear me? Everyone able to hear me? Uh, Yes, sir, we can hear. okay. Thank you. Thank you, Dr. Ali, for inviting me this on this webinar series. So let me share the screen. Uh, okay. So basically, uh, uh, my topic of this training is on the microarray data with the help of GEO2R and then using the cytoscape network analysis with the hub bottleneck from the protein-protein network data interaction. So basically, the purpose of this workshop is to train students regarding the implication of the microarray data, the raw data which is being applied, which is being uploaded on the GEO2R database, and how we can use that raw data in order to analyze certain desired proteins, which is also called a differentially expressed genes. So I am going to present something before starting the training session. I'm just going to give you a brief presentation regarding the concepts which will be used during this presentation. Meanwhile, there is a software which is called Cytoscape, which is currently not being available. I am on this system which I'm currently presenting. So I have it's in the download position, and which will take certain period of time. But before that, I have to show you what I'm going to present. So the steps which I'm going to follow in this presentation, in this workshop is, or training is, find the differentially expressed genes, find out the differentially expressed genes or the corresponding proteins through microarray or the sequencing data analysis. So these are the two platforms which is most commonly used, that is the microarray and the sequencing analysis. Previously, what researchers from our field use is the use of microarray, but currently, since sequencing technology is recently updated, so most of the researchers have shifted their research from microarray to the sequencing analysis, and in that, RNA sequencing is the most used platform. Uh, uh, it, okay, the purpose of this is to find out the differentially expressed genes. So what are the differentially expressed genes? I'll be explaining in the next slide as well. Then the second step will be to find out the protein-protein interaction of profiles of differentially expressed genes from the string database. Take a string database. There's a database on which is being most commonly used, which is called the string, and from that string database, we are able to identify the differentially expressed genes, and then we will be the score
Okay, what is this network edge which represent string PPI score of differentially expressed genes? Basically, you have to know between the difference between a node and an edge. What is the difference between a node and an edge? Whenever there is a protein-protein interaction pathway being drawn from a string database, there are two type of representations which have to be notified, which have to be studied. Is one is node, and the other is edge. Node actually represents the gene, the name of the gene, while the edge represents the interaction between the two genes, the line which connects these two circles. And the node is basically represented by a circle, and those two circles, or those multiple circles which are connected by a single line, is called edge. So in a string database, the score which we obtained after that interaction string data, that string analysis, that score actually depend upon the score is actually represented by the network edge, right? And then we will be able to use that analysis of the string database to find out the topological centrality parameters like hub and bottleneck nodes. So what are hub and bottleneck nodes? These will be explained in the coming slides. So our main purpose, or our final purpose, is to identify these hub and bottleneck nodes. Uh, when you are being using as a drug designing methodology, when scientists, researchers are trying to identify those key hotspot regions, or those key hotspot genes, they have to identify the hub and bottleneck nodes, right? And our main purpose is to identify hub and bottleneck nodes. Those are the key genes which will be able to identify, which will be targeted which will be used as a targeted therapy. So this is a microarray. Starting with the lecture, this is the microarray, and basically this is a chip on which thousands of genes are attached, and their expression level is being detected. So the basic purpose of microarray is to detect the expression of thousands of genes at the same time. In this slide, on this microchip slide, there are thousands of tiny spots at the defined positions. They are uniformly distributed. So these, and on uh, each spot actually represents the sequence of a gene or a probe to detect its expression level. For example, if I have a protein, if I have a gene called as IL-6, so on one spot there is a sequence of the IL-6 gene being attached on this probe, and whenever the expression, and the input is basically the sample which is being input on this slide is the mRNA, right? So the purpose of this microarray is to detect the expression level. So RNA, the fundamentals of this microarray is that, first of all, RNA from two different tissues or cells is used to synthesize single-stranded cDNA. The first step is to we have a group of samples, and normally that two group of samples include patient and control. For example, in a study, normally we have to use whenever we use a disease condition, we have to use a control sample. Then control is basically a healthy sample. So what is the prerequisite, or the first step is that the RNA is being isolated from the patient, and then RNA is also being isolated from the control, and then this RNA is being converted into the single-stranded cDNA, which is actually the representation of the RNA. Then these both samples are, then these cDNA is being differentially labeled with two different dyes. For example, if for example on sample A, which is actually a patient, I labeled that cDNA with green dye, which is called the CY3 labeled dye. So the patient cDNA will be labeled as green, while the other while the other group, which is called the control, will be labeled with a different dye, that is the red dye, CY5 label dye. So once those cDNAs are labeled, differentially labeled with two different dyes, uh, then wait a minute. When then these two different dyes will be mixed
then those two different samples will be mixed and hybridized to the array surface. This array, this is the array, this is the microarray slide, and once those cDNAs are labeled, these are they are mixed together and they are being hybridized to the array surface. So the green spots and once these cDNAs are hybridized to the DNA or to the gene sequence being present, each signal the signal which is being detected by the softwares and then through the computers, they are a representation of the intensity of the expression profiling. I mean, the more the green spots which are being present in a particular spot area, so that means that is upregulated of the sample A. That means that sample A, I mean, patient is being upregulated. Whenever I use the upregulated terminology, that means the expression level of that particular gene is being increased. So, and in other cases, in the alternatively way, whenever there is a red spot, so that means there is a down regulation of the sample A. And the yellow spot means that the samples of both genes are equally expressed. So in this case, in this slide, there is a expression profiling which is being detected by the intensity of the fluorescent dyes which is being used in our sample. So this is basically this is the type of microarray which is called as the cDNA microarray. The other commonly type of microarray which is being now most commonly used is oligonucleotide microarray. So this is this is the description of this microarray, cDNA microarray. In this cDNA microarray, in this oligonucleotide microarray, apart from now currently which is being distributed by Illumina and Affymetrix, this cDNA was being used by the Agilent, the company which distributes the cDNA microarray, but now it is being outdated, and now we use currently Illumina and Affymetrix. Okay, in this oligonucleotide microarray, the cDNA which is being created, the cDNA which is being made by the reverse transcription of total RNA, then it is an additional step takes place in which an in vitro transcription is being performed, and then cDNA is being converted into the cRNA, the complementary RNA, which is actually the copy of the cDNA, right? So cDNA is then converted into the cRNA, and then it is biotin labeled. In this case, there is no fluorescent dye, but there is a the cRNA is being labeled by the biotin. The biotin is being incorporated into this in vitro lab, and then once the cDNA is being converted into the cRNA, the biotin is being integrated in this cRNA. So, and then the it is being fragmented, and on the chip there is an array of there is the probe which of each nucleotide or each gene which is being incorporated on this probe, or I would simply call as the chip. In this chip, the nucleotides are being present. So once this hybridization of the biotin labeled cRNA takes place, it is being washed, and then scan and quantitative measurement of each expression of the nucleotide is being done. So this is most commonly used nowadays, the oligonucleotide microRNA, while the previous version, the cDNA microarray, has been outdated. So coming towards the main task, which is the use of the GO2R. So GO2R basically is a web-based portal which is being designed for the purpose of comparing two or more groups of samples in order to identify genes that are differentially expressed across experimental conditions. Normally, the purpose of GO2R is to help those individuals who are not more expert in the R language, because these tasks is normally being performed in the R language. I hope I mean, I just want to know how many of you are being familiar with R language, or have previously been used, or you have previously anyone? G. Uh, I just want to know, Kokab Imran has just hand raised. Assalamualaikum, sir. Okay. Walaikum Assalam. Assalamualaikum, sir.
Sir, I have used R language in my final year research, but it doesn't work in my research, so we have skipped that section of R. But we are familiar with the working of R and the syntax of R. Okay, okay, that's fine. Basically, I know one of the main limitation of our universities, one of the main limitation of our students from our university sector is that they are not being familiarized with the programming languages, and one of the programming languages is R, and apart from that, Python is also being used. So these web-based tools are designed. Geo2R is being designed in such a way कि आप लोगों if there is an problem कि अब मैं अगर बीच में उर्दू लैंग्वेज उर्दू का इस्तेमाल करूं, would it be fine? That's right, sir. Please. Okay, Urdu is yeah. good. So that more people can be able to understand it, familiarize with. Exactly. Basically, the purpose of Geo2R is a web-based portal. NCBI पे जाके most of जो हमारे हम जो students हैं या researchers हैं, वो most of the people are not familiarized with much of the other tools which are being available on the NCBI. जिसमें जो most important thing है वो Geo है, Geo2R है. Geo basically एक database है. If I'm going to show you कि जियो जो है बेसिकली एक डेटाबेस है जिसमें जिसमें एक्सप्रेशन रॉ डेटा एक्सप्रेशन जो है वो अपलोडेड होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई जीन सीक्वेंस है, आप अपना जीन सीक्वेंस जो है वो एनसीबीआई पे अपलोड करते हैं. सिमिलरली दोज हु आर बीइंग यूजिंग द ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस या एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग एनालिसिस, तो उनके पास जो माइक्रोएरे का डेटा आता है या आरएनए सीक्वेंसिंग का डेटा आता है, वो अपना डेटा जियो के ऊपर अपलोड करते हैं. सो जियो इज बीइंग डेफिनेटली इज बीइंग डिजाइंड, इज बीइंग अवेलेबल ऑन द एनसीबीआई, और वहां से हम अपने रॉ डेटा जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. और Geo2R एक प्लेटफॉर्म जो है वो जियो ने दिया है, जीईओ आई वुड से, जीन ऑमनिबस सीक्वेंस एनालिसिस, और इट्स फुल एब्रिविएशन इज. सो Geo2R is basically a web-based portal which is being available on Geo database, कि आपने वहां पे जो परफॉर्मेंस जो एनालिसिस आर लैंग्वेज पे करनी है वो सारी की सारी आप विदाउट यूजिंग द स्क्रिप्टिंग, विदाउट नोइंग द स्क्रिप्ट लैंग्वेज, विदाउट नोइंग द कोडिंग लैंग्वेज, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जियो के ऊपर कर सकते हैं. राइट. सो उसका ये एडवांटेज हमें जो है वो उसने दिया है. सो we are being able to identify the differentially expressed genes. So what is differentially expressed genes? सबसे पहले सवाल ये आता है कि differentially expressed genes होता क्या है? A gene that is declared differentially expressed gene is an observed difference or change in the read counts or expression between two experimental conditions is statistically significant. This means हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक कंट्रोल है और एक पेशेंट है, और दोनों के दरमियान जो एक्सप्रेशन लेवल है वो डिफरेंट है, सिग्निफिकेंट अगर आ रहा है, और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नॉर्मली वी यूज द वैल्यू 0.05. सो द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 0.05. सो हमारे पास हम डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन सिर्फ उन्हीं जीन्स को कहेंगे जब हमारे पास वो जीन कंट्रोल और पेशेंट में जिनकी एक्सप्रेशन प्रोफाइल इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होंगी कि जब आप उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाएंगे तो उसकी पी वैल्यू 0.05 या उससे कम होगी. आई होप कि अंडरस्टैंड यू पीपल के डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स क्या होते हैं. एनी क्वेश्चन अब तक यहाँ पे कि डिफरेंशियली, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी जितनी भी जो आगे एनालिसिस होगी वो डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स के ऊपर ही बेस करती है, डीईजीज जिसको हम कहते हैं. आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स वो जीन सेट्स होते हैं जो जिनके एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग दो ग्रुप्स में, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेस्टिंग अ कंट्रोल वर्सेस अ पेशेंट ग्रुप, एंड दैट वन पर्टिकुलर जीन, उसका एक्सप्रेशन लेवल जो है वो पेशेंट में बहुत कुछ और होता है और कंट्रोल्स में जो है वो कुछ और होता है, और जब आप उनका डिफरेंस निकालते हैं, उनका एक्सप्रेशन लेवल का डिफरेंस निकालते हैं, तो उसके बाद जो उनका हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि उसके पी वैल्यू जो होती है वो 0.05 या उससे कम होती है, एंड दैट पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन. So Geo2R is a web-based. Okay, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप्स की यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं कि हमने एक सेशन नंबर एंटर करना होता है जियो के ऊपर. क्लिक डिफाइन ग्रुप्स एंड एंटर द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ सैंपल्स विच नीड्स टू बी कंपेयर्ड, फॉर एग्जांपल पेशेंट्स एंड कंट्रोल. यहाँ पे सबसे पहले हमें एक सेशन नंबर चाहिए होता है, उसके बाद हमने ग्रुप्स को डिफाइन करना होता है, और आफ्टर डिफाइनिंग द ग्रुप वी विल बी असाइनिंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप. फॉर एग्जांपल हमारे पास 14 सैंपल्स हैं, यहाँ पे भी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको शो करूंगा. आउट ऑफ 14 सैंपल्स हमारे पास 10 सैंपल्स जो है वो पेशेंट के हैं और 4 सैंपल्स जो हमारे पास कंट्रोल के हैं. ठीक है, और मैंने ग्रुप बना दी है पेशेंट और कंट्रोल. सो आई विल बी एलोकेटिंग 10 सैंपल्स
in the patient group, while I will be allocating 4 samples in the control group. And then मैं अपनी जो settings हैं GO2R के ऊपर वो by default settings ही रखूँगा, because you can change your settings, but depending upon the conditions or depending upon the needs you have, you will be you can change your default settings. But currently अभी यहाँ पे जो analysis मैं करूँगा वहाँ पे मैं default settings ही रखूँगा. और उसके बाद जो मेरे पास जो analysis, मेरे पास एक table आएगा और उस table के अंदर मेरे पास differentially expressed genes होंगे, their p values, their gene title. So I have each and every information which I will be available in that settings. उसके बाद जब मेरे पास differentially expressed genes आएंगे, I will be using cytoscape. I will be using string database, ताकि string से मुझे जो है वो string से जो है वो मुझे differentially expressed genes जो है वो मुझे जब मैं उनको अपलोड करूंगा उसके बाद मेरे पास एक नेटवर्क क्रिएट होगा, और वो नेटवर्क जो है वो मैं फिर उसको साइटोस्केप पे इंपोर्ट करूंगा. ठीक है. सो नेटवर्क क्रिएशन मैं स्ट्रिंग डेटाबेस पे करूंगा और उसको मैं फिर इंपोर्ट कर दूंगा साइटोस्केप पे. सो साइटोस्केप इज बेसिकली जिनका इस्तेमाल जो रिसर्चर्स या जो स्टूडेंट्स जो हैं वो सिस्टम्स बायोलॉजी से उनको इल्म है, या वो they are basically using the systems biology approach to solve the multiple biological problems. So they are more commonly using the cytoscape software. It is an open software. It is a very good software which have different plugins available on that, and आपने सिर्फ वहाँ पे plugins को download करके अपने analysis करने होते हैं. I will be showing this in the later part of my presentation of my training. Then जो हमारे पास जो मेन पर्पस है, मैंने स्टार्ट में प्रेजेंटेशन में बताया कि वी हैव टू एबल टू आइडेंटिफाई द हब एंड बॉटलनेक जीन्स. सो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन ये आता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड बॉटलनेक जीन्स. सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी बताइए, व्हाट आर बेसिकली हब एंड बॉटलनेक जीन्स. Hub is basically defined as the top 10% of the nodes. Nodes से क्या मुराद है? The circles which is being represented, and each circle represent a single gene. So वो 10% of the genes which are in the high confidence protein network ranked by the node degree, the number of interactions that are associated with a given node. So hub genes वो होते हैं basically in a simple language I would define कि hub genes वो होते हैं जिनकी interactions बाकी nodes के साथ ज़्यादा होती है, maximum होती है. So they are those top ranked nodes which have maximum interactions with other nodes. और bottleneck nodes क्या होते हैं? Bottleneck nodes is again defined as that those top 10% of the nodes in a high confidence protein network. हमारे पास एक protein network बनता है PPI interactions के बाद, प्रोटीन इंटरेक्शन के बाद हमारे पास एक नेटवर्क बनता है, और उस नेटवर्क के बाद हमने बॉटलनेक नोड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं. और बॉटलनेक नोड्स क्या होते हैं? दे आर रैंक्ड बाय द बिटवीननेस सेंट्रलिटी. और इस बिटवीननेस सेंट्रलिटी से क्या मुराद है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है एक नेटवर्क में कौन सा होगा टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ एंड द और आई वुड रादर से इट एज द सेंट्रलिटी, यानी ऐसे जीन जो कि एक नेटवर्क के सेंटर में मौजूद होता है और उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है. और इन दोनों नोड्स या जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्लगइन या जो ऐप, आई वुड रादर से जो लोग इस वर्ड प्लगइन से फेमिलियराइज नहीं है, मैं उसको इजीली डिफाइन ये करता हूँ कि ऐप एक होती है साइटोस्केप पे जिसका जो हम ऐप इस्तेमाल करेंगे वो है सेंटीस्केप. सो आई विल बी यूजिंग द सेंटीस्केप ऐप ऑन द साइटोस्केप. ओके, देन आई विल बी सो यहाँ पे इस डायग्राम से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि बॉटलनेक नोड्स और हब नोड्स क्या होते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, ये वाली जो जो जीन्स हैं, अब ये नोड्स हैं विच आर एक्चुअली जीन्स, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये रेड, ग्रीन और ब्लू, दीज आर द बॉटलनेक नोड्स. बॉटलनेक नोड से क्या मुराद है? जो कि सेंट्रलिटी पैरामीटर से हम करते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो लेते हैं. अब आप लोग ये देखें कि ये वाले जो दो जीन्स हैं या नोड्स हैं, ये हमारे इस पूरे पीपीआई नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क के सेंटर है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन इस वाले जीन ने आगे ट्रांसफर करनी है वो भी इनके थ्रू से गुजरेगी. अगर कोई इंफॉर्मेशन इस जीन ने आगे ट्रांसफर करनी है और वो यहाँ से यहाँ पे आएगा तो वो भी इन दोनों जीन्स के थ्रू होगा.
अगर इस जीन ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, या इस वाली जीन ने यहाँ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, सो इट हैज टू गो थ्रू दिस जीन, दीज टू जीन्स. सो दीज टू जीन्स बेसिकली आर द बॉटल नेक जीन्स. ठीक है. इसके अलावा हब जीन्स कौन से हैं? हब जीन्स ऐसे जीन्स हैं जो कि मैक्सिमम इंटरेक्शन करते हैं विद अदर जीन्स. यहाँ पे अगर आप ग्रीन वाले जीन को देखें तो ये हब हब नोड है, यानी हब जीन है. क्यों ये हब नोड है? बिकॉज इट हैज मैक्सिमम इंटरेक्शन विद द अदर नोड्स. इस पर्टिकुलर ग्रीन जो नोड है, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, एंड ऑल द अदर नोड्स उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन है. सो इट हैज द मैक्सिमम इंटरेक्शन, सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इज एट द हब नोड. बट इसकी जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ इन दोनों के साथ है. सो दिस इज कॉल्ड, सो दिस ब्लू इज कॉल्ड एज नॉन हब, यानी कि ये हब नोड नहीं है, ये बॉटल नेक नोड है. इसकी तरह से ये वाला जो नोड है, यहाँ पे जो येलो कलर का सिंबल आपने नजर आ रहा है, ये हब नोड है, यानी कि इसकी इंटरेक्शन मैक्सिमम जीन्स के साथ, मैक्सिमम नोड्स के साथ है. और इसके इसी तरीके से लेकिन ये बॉटल नेक नोड नहीं, क्योंकि इसके अंदर से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर ये सेंटर इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि सेंट्रल जीन नहीं है, इसके अंदर से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ से आगे पास ऑन होगी. तो दिस इज द हब जीन, बट इट इज नॉट अ बॉटल नेक नी. और ये वाला जो है, ये ना तो हब है और ना ही बॉटल नेक नोड है. सो इस एक्टिविटी का हमारे पास पर्पज ये होता है कि हमने ऐसे जीन्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जो कि बोथ हब भी हैं और बोथ बॉटल नेक जीन्स भी हैं. यानी कि ये वाला जो जीन है, ये ग्रीन वाला, ये नोड जो है, ये हब भी है और ये बॉटल नेक नोड भी है. एंड इन दिस सिस्टम्स बायोलॉजी अप्रोच, हम what the systems biologist do is to identify this kind of genes, ताकि ये वाला जो जीन है अगर हम इसको टारगेट करें तो ये जो है वो आगे उस तमाम की तमाम एक्टिविटी को बहुत आसानी के साथ ब्लॉक कर सकते हैं हम उसको. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ डिजीज, देयर इज अ डिजीज ग्रुप, कोई भी डिजीज आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से रूमेटाइड आर्थराइटिस, अब रूमेटाइड आर्थराइटिस में हमारे पास डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स आए हैं, और उस डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स के बाद हमने ये वाले जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो कि हब और बॉटल नेक नोड भी हैं. तो उसको हम अगर ब्लॉक करें किसी भी ड्रग के साथ, सो दैट कैन बी इजीली, दैट कैन बी अ टारगेट, दैट कैन बी द बेस्ट पोजीशन टू फॉर अ टारगेटेड थेरेपी. ठीक है. आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी होगी. एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओके, जी जी, महानूर खान जी. जी सर, मैंने ये पूछना था कि आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे सही समझ आई है कि नहीं. कैन दिस बी बॉटल नेक? विच वन? जो मैंने स्क्रीन पे एनोटेशन किया है, पर्पल वाले से लेकर नीचे नीचे की एक तरफ सेकेंड. जो ग्रे वाला है. This one? Okay, yeah. Yeah, this can be a bottleneck gene as well, definitely. Okay sir, okay, just wanted to confirm. Thank you. Okay, thank you. Uh, I am just trying to install the Cytoscape software, which will take a bit of time. So यहाँ तक अब तक आपको बात समझ आ गई जो? So any more question? यहाँ पे किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? You have आप लोगों को बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स क्या होते हैं, बॉटल नेक जीन्स और हब नोड्स क्या होते हैं, बॉटल नेक एंड हब नोड्स क्या होते हैं. ठीक है. अब आई विल बी स्टार्टिंग. यहाँ तक जो है वो मैंने अपने जो लेक्चर जो प्रिपेयर स्लाइड जो प्रिपेयर की थी, दैट इज ऑल. एंड आई एम गोइंग टू now I am going to share my screen for the rest of the training. Okay, so basically यहाँ पे अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, first of all, so let's start for our main first step in this training, which is called as the GeoBase. So I'm going to enter Geo NCBI. सो यहाँ पे अगर आप जियो NCBI गूगल पे करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जियो का जो डेटा सेट्स हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद आ जाए, हमारे पास पता हो जाएगा कि हमारे जो डेटाबेस है वो कहाँ पे मौजूद है. ठीक है. So okay, just wait a minute. I'm just going to check the whether my software Cytoscape has been installed. Okay, yeah, I'm going to check and run it before proceeding, because हमारी जो next activity सारी जो है वो ट्रेनिंग वो Cytoscape पे ही डिपेंड करती है. So okay, it will take a little bit of time because it's a heavy software.
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीन एक्सप्रेशन ऑमनिबस। सो दिस इज अ डेटाबेस, अ पब्लिक फंक्शनल जीनोमिक्स रिपोजिटरी डेटाबेस, जहाँ पे आप सीक्वेंस जो एनालिसिस होती हैं, जिसका एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग होती है। मैंने अपनी स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन में ये बताया था कि माइक्रोरे डेटा एज वेल एज आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस डेटा, आप जो रॉ डेटा है वो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास की और वर्ड और जियो एक्सेशन की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हम टिपिकली डिजीज से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स लेंगे। आई विल बी शोइंग एज कि यहाँ पे जो हम टिपिकल जो एग्जांपल लेंगे वो है सार्स की, ठीक है। बिकॉज सार्स, चूंकि दिस इज द era of COVID and I will be using an example which is being more related. So यहाँ पे हम अपने डिजीज का नाम लिखेंगे कीवर्ड में, और जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग अगर आप इस होम पेज पे देखें, जियो के होम पेज पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रही है एनालाइज स्टडी विद GO2R। सो दिस इज बेसिकली द टूल विच इज बीइंग एम्बेडेड इन दिस जियो डेटाबेस, और उसके बाद हम जाके इस GO2R के ऊपर हम उसको एनालाइज करेंगे अपने रिजल्ट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सार्स, देन लेट्स सी हमारे पास क्या ऑप्शन आती है कि हमारे पास 662 रिजल्ट्स हैं फॉर सार्स। बट वी हैव टू लुक, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टडीज इंक्लूडेड होती हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये रिजल्ट्स, हमारे पास जब मैंने सार्स एंटर किया है तो हमारे पास मेरे पास ये ऑप्शन आई है। अब मैंने लिखना है लेफ्ट साइड पे अपने डेटा सेट्स को देखना है, क्योंकि ऑल वी नीड इज डेटा सेट्स। यहाँ पे सार्स से रिलेटेड सिर्फ एक डेटा सेट मौजूद है एंड वी विल बी यूजिंग दैट डेटा सेट इन आवर एनालिसिस, राइट। ओके, सो दिस इज द डेटा सेट विच इज बीइंग अवेलेबल। अब यहाँ पे ये एनालिसिस प्रोफाइलिंग है, ये माइक्रोरे की एक जो चिप होती है उसका जो है वो एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रीन और पिंक, जो उन्होंने इस तरीके से जो उन्होंने जो फ्लोरेसेंट लेबल्स जो की हुई हैं उस माइक्रोरे में, वो रेड, पिंक एंड ग्रीन है, और उसके इंडिविजुअल कलर्स के मुताबिक फिर उन्होंने देखा है कि कौन से अप रेगुलेटेड और कौन से डाउन रेगुलेटेड है। अगर आप इस की जो डिस्क्रिप्शन आप देखें तो ये स्टडी का नाम है, और इसको आप डिटेल में भी हम देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 14 सैंपल काउंट आएंगे, ठीक है। आप इसकी स्टडी जो है, ये स्टडी जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इन द PMID डेटाबेस, और ये BMC इम्यूनोलॉजी में 2005 में ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है, ठीक है। और इसमें ये इस स्टडी का नाम है, और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रॉ डेटा सेट्स हैं, डेटा सेट फुल सॉफ्ट फाइल, ठीक है। ये सॉफ्ट फाइल से मुराद ये रॉ डेटा सेट्स फाइल्स हैं। सो इफ यू आर बीइंग यूजिंग आर लैंग्वेज, आपको ये डेटा सेट्स डाउनलोड करके अपने आर प्रोग्राम के ऊपर इंटीग्रेट करने चाहिए। बट चूंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू यूज आर लैंग्वेज, सो यहाँ पे आई विल नॉट बी डाउनलोडिंग दिस डेटा सेट फाइल्स। what I will be doing is, ये इसका एक्सेशन आईडी जो होता है वो मैं वो कॉपी करूंगा। ये इसका प्लेटफॉर्म होता है GPL 201। ये एफीमेट्रिक्स, क्योंकि एफीमेट्रिक्स एक कंपनी है जो कि माइक्रोरे चिप जो है वो बनाती है, और हर एक माइक्रोरे चिप का उसका अपना एक इंडिविजुअल आईडी होता है। यहाँ पे GPL 201 इस पर्टिकुलर माइक्रोचिप का आईडी है, जो कि इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए यूज हुआ है। और लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए वो इसका एक्सेशन आईडी है। वो एक्सेशन आईडी जो कि जियो ने इस स्टडी को एलोकेट किया है वो ये है GSE 1739, ठीक है। अब इसमें 14 सैंपल्स। अब मैंने इसको कॉपी किया इस पर्टिकुलर सीरीज नंबर को, एंड आई विल बी गोइंग बैक, और मैं जाऊंगा इसके ऊपर GO2R के ऊपर, एनालाइज द डेटा विद द GO2R, राइट। एंड देन ये GO2R है, मैं यहाँ पे इस जियो एक्सेशन आईडी यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, और जब मैंने पेस्ट करूंगा मैं इसको सेट का बटन दबाऊंगा तो ऑल ऑफ द डेटा विल बी अपलोडेड। लोडिंग सैंपल्स यहाँ पे लोड कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 14 सैंपल्स हैं, ठीक है। और हर एक सैंपल को उसका सोर्स नेम भी बताया गया। ये 10 सैंपल जो हैं वो पेशेंट के हैं, और ये 4 सैंपल जो हैं वो नॉर्मल यानी कंट्रोल के हैं, ठीक है। उसने लोड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप हमने अपनी स्लाइड्स में देखा था कि हमने ग्रुप्स को डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे ग्रुप्स को डिफाइन करता हूँ। द फर्स्ट ग्रुप आई विल बी यूजिंग इज पेशेंट, द सेकेंड ग्रुप इज कंट्रोल, हेल्दी पर्सन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब मैं जो अपना डेटा है वो एलोकेट कर दूँ इस ग्रुप्स में, अपने सैंपल्स को अपलोड करूंगा। सो पेशेंट में कौन कौन से आएंगे? पेशेंट में ये वाले सारे आएंगे, एंड आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस, और ये 10 सैंपल्स इस पेशेंट ग्रुप में चले गए हैं। इसी तरीके से मैं ये 4 जो कंट्रोल्स वाले हैं मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा,
और मैं इसके कंट्रोल ग्रुप के अंदर एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे ये ग्रुप्स डिफाइन हो गए और मैंने ग्रुप्स के अंदर इन सैंपल्स को अपलोड कर दिया, राइट। और उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस पे आएंगे। आप जब ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपके पास ये डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। आपके पास जब एनालाइज करेंगे तो एक पी वैल्यू आएंगी और एक एडजस्टेड पी वैल्यू आएगी। एडजस्टेड पी वैल्यू से मुराद ये है कि नॉर्मली हमारे पास ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। बेंजामिनी एंड हॉचबर्ग फॉल्स डिस्कवरी रेट, नॉर्मली हम लोग ये ही एडजस्टेड पी वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स और एनालिसिस रिक्वायरमेंट, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पी वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। सम मे यूज Bonferroni correction, so these are all statistical analysis requirement। इसी तरीके से यहाँ पे पी वैल्यूज ऑटोमेटिकली 0.05 है और ऑटो डिटेक्ट यहाँ पे सारे पैरामीटर्स मैं बाय डिफॉल्ट सेट करूंगा। यहाँ पे मैं एक चेक करूंगा पेशेंट वर्सेस कंट्रोल, और जब मैं चेक करूंगा तो वो मुझे वोल्केनो प्लॉट्स दिखा देगा बिटवीन कंट्रोल एंड द पेशेंट। देन आई विल बी क्लिकिंग ऑन द रीएनालाइज बटन। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। तो एक्सक्यूज मी यहाँ पे सर, आप, हाँ जी, ये वोल्केनो जी जी, प्लॉट्स क्या थे? ये वॉल्केनो प्लॉट्स जो हैं बेटा, आपको ये नजर आ रहे हैं, ये वाला ये यस सर। वॉल्केनो प्लॉट्स हैं, ये इसको कहते हैं वॉल्केनो प्लॉट्स। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके वॉल्केनो प्लॉट का मकसद क्या होता है। वॉल्केनो प्लॉट्स बेसिकली यहाँ पे ये आपके वॉल्केनो प्लॉट है। सो दीज आर बेसिकली डिफाइनिंग अस, रिप्रेजेंटिंग अस अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं लॉग फोल्ड चेंज और माइनस लॉग 10 पी वैल्यू, ये पी वैल्यूज हैं ये, और ये लॉग फोल्ड चेंज है। तो नॉर्मली जो एक्सप्रेशन का जो डेटा होता है, हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। लॉग टू फोल्ड चेंज जो है वो इस्तेमाल होता है एक्सप्रेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी पी वैल्यू 0.05 माइनस लॉग 10 या पी वैल्यू जो है वो, इसको अगर आप पी वैल्यू से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 या उससे कम जो है वैल्यूज, वो उसकी पी वैल्यूज को हमने रिप्रेजेंट यूज करना होता है। तो यहाँ पे ये जो रेड सिंबल है ये आपको देख सकते हैं, ये है अप रेगुलेटेड। ये जीरो के राइट साइड पे कुछ वैल्यूज हैं और जीरो से लेफ्ट साइड पे कुछ वैल्यूज हैं। जो जीरो से राइट साइड पे हैं वो अप रेगुलेटेड जीन्स हैं, यानी कि ऐसी जीन्स जिनका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ रहा है। और एक ऐसी, और ये लेफ्ट साइड पे वो जीन्स है जो कि डाउन रेगुलेटेड है, यानी कि वो जीन्स जिनकी एक्सप्रेशन लेवल कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 कलर से रिप्रेजेंट किया, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रे। ग्रे से मुराद जिनकी पी वैल्यूज 0.05 से कम है, उनको हम नहीं लेंगे। रेड से मुराद वो जीन्स है जो कि डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड है, जिनकी पी वैल्यूज 0.05 से ज्यादा हैं। सो अगर आप इस हर एक रेड वाले सर्कल को ऊपर अपना माउस का क्लिक रखेंगे तो आपको उसका जीन नेम भी नजर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो जीन नेम ARG1 है। इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू लॉग फोल्ड टू चेंज है 4.649 विच इज अ हाई वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन एक हाई वैल्यू भी है। इसका मतलब है कि ये हाईली अपरेगुलेटेड जीन है, ठीक है। और ये इसका जीन टाइटल भी है। आईडी से मुराद ये उसके उस पर्टिकुलर प्रोब जो माइक्रो अरे पे जो चिप होती है उसके ऊपर जो स्पॉट लगा होता है, उस स्पॉट का, हर एक स्पॉट का एक आईडी होता है, और उसी आईडी के ऊपर वो कंप्यूटर जो है उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन लेवल को डिटेक्ट करता है। सो आईडी नंबर 206177 अंडरस्कोर S अंडरस्कोर 80 पे जो जीन उस पे इम्बेड था, जो जीन अटैच किया गया था उस पर्टिकुलर चिप पे, वो ARG1 जीन का सीक्वेंस था, ठीक है। और उसी वजह से कंप्यूटर ने उसी पर्टिकुलर जीन का जो एक्सप्रेशन लेवल है वो डिटेक्ट किया। अब हमारे पास ये जो है वो वॉल्केनो प्लॉट हो गया। हम इसको डाउनलोड करके हम अपने जो है वो अपने मैन्यूस्क्रिप्ट में या अपने थीसिस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वॉल्केनो प्लॉट। इसी तरीके से मुख्तलिफ और हमारे पास प्लॉट्स हैं। दिस इज मीन डिफरेंशियल प्लॉट। मीन आईडीज बताएंगी हमारे पास ये अप रेगुलेटेड है, ये डाउन रेगुलेटेड है। इसी तरीके से और मुख्तलिफ डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन और ऑन योर नीड्स आपने कौन से जो है वो प्लॉट्स को इस्तेमाल करना है। मेन चीज हमारे पास ये प्लॉट्स तो आपके पास आ गए हैं। अब इसके अलावा हमने ये टेबल हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो हमने जो है वो टेबल को एक तो डाउनलोड करना है। आपके पास टेबल में मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही हैं, TB लॉग FC जीन सिंबल जीन टाइटल एंड ID एडजस्टेड पी वैल्यूज। अब मैं इसको टेबल को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो डाउनलोडेड फॉर्म आएगी वो TSV फाइल फॉर्मेट आएगी। वंस आई विल बी डाउनलोडिंग दिस, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा टेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो TSV फाइल डाउनलोड है। अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में इसको मैंने एक डेस्कटॉप में एक जो है वो
एक फोल्डर बना लिया है टेस्ट के नाम से, जहाँ पे मैंने अपने सारे रिजल्ट्स को जो है वो रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको। सो ये मेरी TSV फाइल है। TSV फाइल से मुराद इट इज बेसिकली टैब डिलिमिटेड फाइल। अब मैं इसको अपनी एक एक्सेल शीट में खोलूंगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में, इस ट्रेनिंग में। सो आई विल बी ओपनिंग एन एक्सेल फाइल and I will be naming it as the ID GSE 1739। ठीक है, अब मैं इस एक्सेल फाइल को ओपन करके ये वाली जो TSV फाइल है ये मैं इंपोर्ट करूंगा अपनी एक्सेल फाइल पे। ठीक है, देन आई विल बी, ये मेरी एक्सेल फाइल खुल गई है। अब मैं डेटा पे जाके मैं यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट, जी फिर जी आपकी आवाज आ रही वो है आपको? फाइल शो नहीं हो रही। ओके ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकेंड। ओके, बेसिक GSC। ओके, अब आपको हो रही है शो? जी, शो यस सर। आपको शेयरिंग हो रही है। ओके, सो दिस इज बेसिकली हमारे पास एक्सेल शीट मैंने खोल ली है। ये डेटा पे जाके मैंने फ्रॉम टेक्स्ट पे जाके मैंने जहाँ पे वो डाउनलोड रखा हुआ है अपनी TSC फाइल, वो मैंने एक डेस्कटॉप पे मैंने अपना एक फोल्डर बना लिया है टेस्ट के नाम से। और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल मैंने बल्कि यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑल फाइल रखूंगा, और मेरी ये वाली फाइल है TSV फाइल, ये मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, अब जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगी, जस्ट वी हैव टू टैब डिलिमिटेड रखना है आपने, नेक्स्ट करते जाना है, एंड देन आई विल बी फिनिशिंग इट एज, एंड देन ओके करूंगा। सो मेरे पास ये वैल्यू, मेरा टेबल जो है वो इंपोर्ट हो गया TSC फाइल से एक्सेल फाइल पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब तक, यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर। ओके फाइन। सो दिस इज माई आईडी, ये मेरा कॉलम, ये मेरा हेडिंग है, इसको मैं टिपिकली बोल्ड रखता हूँ। ठीक है, और ये मेरी P वैल्यू एडजस्टेड है, P वैल्यूज है। जो यहाँ पे अभी हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिंसिपल सीखने की है, जो चीज़ हमें ज़रूरत है समझने की, वो P वैल्यूज हैं, और एडजस्टेड P वैल्यूज हैं, और log FC वैल्यूज हैं। अभी इस वक्त आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि कितने जीन्स है। लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड सी हाउ मेनी जीन्स वी हैव करंटली एट राइट नाउ। सो वी हैव 8793 जीन्स जो कि हमारे पास इस फाइल से डाउनलोड होके आए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी जो है वो एडजस्टेड P वैल्यू को मैं 0.05 या उससे कम रखता हूँ। सो यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ, एंड देन आई विल सी के यहाँ पे नंबर फिल्टर्स पे जाके लेस देन और इक्वल टू 0.05। ठीक है, मैं ओके का बटन दबाऊंगा, एंड देन अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने जीन्स आए हैं। सो we have currently 120 जीन्स। आपको समझ आ रही है? मैंने जस्ट एक फिल्टर लगाया तो मेरे पास कितनी चीजें फिल्टर आउट हो गई। सो ये वाले जो जीन्स हैं ये मेरे इंपॉर्टेंट जीन्स है, और इसी जीन्स को मैं आगे अपनी एनालिसिस में इस्तेमाल करूंगा। ये वो जीन्स है जिसकी P वैल्यूज, एडजस्टेड P वैल्यूज 0.05 या उससे कम है, बिकॉज ऑल यू हैव टू नो इज 0.05 एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होता है। 0.05 या उससे कम की जो P वैल्यूज होती हैं वो नॉर्मली एनालिसिस में सिग्निफिकेंट समझी जाती हैं। ठीक है, सो दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू, दैट प्राइमरी थ्रेशोल्ड वैल्यू इज द 0.05। सो यहाँ पे हमारे पास ये जीन्स आ गए। अब यहाँ पे आप इसके इंडिविजुअल लॉग एफ सी भी देख सकते हैं। ये वाला 5.23 इसकी लॉग एफ सी वैल्यू यानी एक्सप्रेशन वैल्यू, दिस इज अप रेगुलेटेड, दिस वन इज डाउन रेगुलेटेड। क्यों डाउन रेगुलेटेड है? बिकॉज इसकी जो लॉग एफ सी वैल्यू है वो -2.9 है। मैंने आपको अभी बताया है कि जिनकी वैल्यूज लॉग एफ सी वैल्यूज माइनस में होगी वो डाउन रेगुलेटेड होंगे, उनका एक्सप्रेशन लेवल बहुत कम हो रहा है, और जिनकी वैल्यूज लॉग एफ सी वैल्यूज प्लस में होंगी उनके वो अप रेगुलेटेड होंगी। सो आई हैव ऑल द अप रेगुलेटेड एंड डाउन रेगुलेटेड जीन्स एज वेल। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? यस सर। So the next thing is I am going to copy this one. I am going to copy all these gene symbols, and okay, I am going to use I am going to share. I'm going to share a screen, another screen, Geo2R. Okay, okay.
यहाँ पे अब मैं जो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है स्ट्रिंग डेटाबेस ओपन करना, ठीक है। स्ट्रिंग, ओके, फॉर एग्जांपल आई राइट इट एज स्ट्रिंग। जब आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपके पास स्ट्रिंग का एक डेटाबेस होगा, यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग से स्ट्रिंग एनालिसिस किसी ने, आप में से किसी ने पहले की है? लेट मी नो अगर किसी ने की है, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, उसी के लिहाज से मैं फिर आगे मूव करूंगा। स्ट्रिंग आप में Yes, से sir. किसी ने पहले यूज की? स्ट्रिंग पे आपने पीपीआई नेटवर्क किसी ने बनाए हैं पहले? Yes, sir. बनाया हुआ है. ओके, फाइन फाइन, दैट्स गुड। सो यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रिंग का डेटाबेस है, ओके आई डोंट नो, यहाँ पे शायद मे बी इंटरनेट का इशू है। सो आई डोंट नो, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा। भी आई डोंट नो यहाँ पे एनी और आप आप, हाँ फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं? जी, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, वहां पे ओपन हो जाएगा। ओके, फायरफॉक्स पे हो जाएगा। आई एम जस्ट यूजिंग गूगल क्रोम, सो क्रोम, लेट मी या थिंक कि यहाँ पे फायर मैंने उसमें अभी देखा है तो उसमें हो जाता है। फिर chat में एक link भेजा. You can also try that. ओके, here is the screen chat page. Okay, I have just used that link. So I'm going to share this Internet Explorer file. Let's see कि यहाँ पे ओपन होता है कि नहीं होता। आप में से किसी का ये स्ट्रिंग ओपन हो रहा है? Yes, sir. मेरा हो रहा है. ओके ओके, फाइन। ये सो वी हैव दिस स्ट्रिंग डेटाबेस। यहाँ पे चूंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोटीन्स हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोटीन्स के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था अपनी जीन्स आईडीज, जो कि हमने एक्सेल फाइल से इंपोर्ट की थी, वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, लिस्ट ऑफ जीन्स, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पे जाके हमने सेलेक्ट करना है होमोसेपियंस, because since we are dealing with the humans, so we have to uh, use Homo sapiens, and then I will be selecting this one, and then I go to search option,
एंड जब मैं ये सर्च करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन कंटिन्यू मैंने इसको रखना है, और मैं जब इसको कंटिन्यू रखूंगा तो मेरे पास एक नेटवर्क क्रिएट हो गया. सो दिस इज स्ट्रिंग डेटाबेस नेटवर्क, पीपीआई नेटवर्क, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क. सो यहाँ पे आप लोग नेटवर्क इसको अगर आप देखें, ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आपको नजर आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, सो दिस इज यहाँ पे अगर आप इस Yes, sir. नेटवर्क को देखें तो यहाँ पे जो नेटवर्क आपके पास आ रहा है ये बहुत हाईली इंटरेक्टेड नेटवर्क है. ये वाले जो जीन्स हैं, ये जो मेरा माउस के कर्सर की तरफ आप लोग देखें तो ये वाले जो पर्टिकुलर जीन्स हैं, इस जीन्स की जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएशन शो कर रही है. ठीक है, जबकि ये जो साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जो आप राइट साइड पे जो जीन्स आ रहे हैं, दे आर नॉट वेरी हाईली लिंक्ड विथ ईच अदर. सो इसकी नेटवर्किंग, अच्छा ये नोड्स और एजेस, मैंने आपको पहले बताया था नोड्स और एजेस क्या होते हैं. ये सर्कल है, ये इसको हम कहेंगे नोड्स, और ये जो एजेस हैं ये शो कर रहे हैं कि एक एक जीन और दूसरा जीन कितना ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिव है. सो द मोर, और वो एक स्कोर जनरेट करता है. अब यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स पे हमने जाना है. सेटिंग्स पे हमारे पास जब जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स हमने उसको वैसे ही रखनी है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन स्कोर हमने यहाँ पे हाई कॉन्फिडेंस रखना है. यानी हाई कॉन्फिडेंस से मुराद हम वो जीन्स चाह रहे हैं जो कि हाईली कॉन्फिडेंट है, हाईली इंटरेक्टिव हैं विथ ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे हम हाईएस्ट भी रख सकते हैं, बट एट दैट टाइम करंटली मैं इसको सिर्फ 0.7 यानी हाई कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो रखूंगा. बाकी सारी चीज़ें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रखनी है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने मिनिमम रिक्वायर्ड इंटरेक्शन स्कोर को मैंने चेंज किया, विच आई चूज एज हाई कॉन्फिडेंस. अब मैं इसको अपडेट करूँगा. अब देखते हैं कि मेरे पास जो पाथवे बनता है, नेटवर्क बन रहा है, वो कैसा बन रहा है. मेरे पास ये नेटवर्क बन रहा है. अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो मेरे पास कम हो गए. ठीक है, जो मैंने इनपुट जीन्स किए थे इस पे, उसके अलावा मेरे पास भी और जीन्स अवेलेबल हैं, आए हैं. सो दे आर एसोसिएटेड जीन्स. ठीक है, स्ट्रिंग डेटाबेस का ये फायदा होता है कि वो आपके क्वेरी जीन के अलावा बाकी जीन्स को भी इनपुट आउटपुट फाइल के अंदर आपको शो करता है. यानी कि वो जीन्स जो कि आपकी क्वेरी जीन्स से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपके टेबल में जो आपने इनपुट किया उसके अंदर मौजूद नहीं है. तो स्ट्रिंग हमें वो अपने डेटाबेस से वो जीन्स भी जो है वो इस नेटवर्क एनालिसिस में शो करता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे इस नेटवर्क को हम साइटोस्केप पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ बिट फाइल, एज अ पीएनजी फाइल. लेकिन यहाँ पे मैं इसको टैब डिलिमिटेड, टैब सेपरेटेड फाइल जो है वो टीएसवी फाइल फॉर्मेट जो है वो कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको एक्सेल पे ओपन कर सकूँ. ठीक है, मैं इसके रिजल्ट्स को अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्कोर्स आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, ये स्कोर्स क्या होते हैं, ये स्कोर्स मैं भी आपको बताता हूँ. just I'm trying to see this. I'm copying it and I'm going to this file को मैं इसको मैं अपनी जो है वो let me share screen my test file. Okay, okay, let me share my test file. So यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, मेरी ये स्क्रीन है डेस्कटॉप की. आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. डेस्कटॉप की. सो ये वाली जो मैंने प्रोटीन इंटरेक्शन पाथवे स्ट्रिंग से डाउनलोड किया वो मैंने टीएसवी फाइल में ओपन कर ली. ठीक है, आप इसको नोटपैड की फॉर्मेट में भी ओपन कर सकते हैं. ठीक है, बट करंटली अभी मैं यहाँ पे एक और एक्सेल फाइल ओपन कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग जो है वो मैंने ओपन कर ली. ठीक है, अब ये मेरी जो है वो यहाँ तक मेरा सेट जो है वो स्ट्रिंग एनालिसिस कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट द. अब यहाँ पे जो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो साइटोस्केप है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे जो स्क्रीन शेयर करूँगा वो ये वाली है. लेट मी सी. सो ये वाली जो स्क्रीन है, अगर आपने साइटोस्केप नहीं डाउनलोड किया तो यू जस्ट हैव टू गो टू गूगल एंड जस्ट डाउनलोड साइटोस्केप. सो दिस इज द सॉफ्टवेयर विच इज़ ओपन. डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे बहुत आसानी के साथ. So this is the open source software platform for visualizing complex networks and integrating these with the attribute data. तो ये आपके पास इसके अंदर बहुत सारी एप्स या प्लगइन्स होती हैं. जो मैंने प्लगइन आपको शुरू में अपनी स्लाइड्स में बताई थी जो हम यूज़ करेंगे, वो भी हम इसी से डाउनलोड करेंगे. जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो और उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक सिस्टम आपके पास नज़र आ रहा है. एक मिनट मैं इसको स्क्रीन शेयर कर लूँ. ये
ये वाला जो मेरे पास सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो लेआउट है, ये साइटोस्केप की विंडो है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऐप्स, यहाँ पे आप ऐप्स पे जाके आपने ऐप मुख्तलिफ ऐप्स डाउनलोड करते हैं यहाँ पे, लेकिन अब मैं ओपन कर रहा हूँ अपना वो नेटवर्क जो स्ट्रिंग से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। आई एम गोइंग टू फाइल, आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट, आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट द नेटवर्क फ्रॉम फाइल। अब मैं नेटवर्क, मेरी जो फाइल में मौजूद है, वो मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप में टेस्ट फोल्डर पे मैं ये वाला जो नेटवर्क है, जो स्ट्रिंग वाला इंटरेक्शन TSV फाइल का, वो ओपन करूं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इंपोर्ट नेटवर्क फ्रॉम टेबल, नोड 1 आर बेसिकली द सोर्स नोड, यानी कि वो नोड्स, वो जीन्स जो कि मैंने इनपुट की थी, और ये वाली जो है वो टारगेट नोड है, यानी कि इसके अलावा मेरे पास जो बाकी जीन्स आई हैं स्ट्रिंग ने, जो उसके साथ सोर्स नोड के साथ एसोसिएटेड है, वो नोड 2 कहलाएंगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ स्कोर्स इस स्ट्रिंग डेटाबेस ने दिए हैं। अब स्ट्रिंग वर्क कैसे करता है, हाउ डज स्ट्रिंग परफॉर्म द एनालिसिस, ये इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो वर्क करता है। नेबरहुड ऑन क्रोमोसोम, जीन फ्यूजन मेथड, phylogenetic occurrence, homology, co-expression data, experimentally determined interaction, database annotated, automated text mining, ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे स्ट्रिंग अपने डेटाबेस की मदद से इन सारे पैरामीटर्स की बेस पे एक कंबाइंड स्कोर देता है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कंबाइंड स्कोर, ठीक है। ये कंबाइंड स्कोर है, हर एक नोड का इंडिविजुअल स्कोर है, और ये जो स्कोर है इसको हम एजिस के लिहाज से यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट लेटर कि इस स्कोर को हम आगे कहाँ पे यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू पुट इट ओके। अब यहाँ पे आप लोग जब ओके के बटन दबाएंगे तो ये नोड टेबल आ गया हमारे पास। यहाँ पे आपको एक पाथवे बन गया जो स्ट्रिंग से जिस तरह से बनाया था उसी तरीके से सेटस्केप में भी एक पाथवे जो है वो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोड टेबल है, यहाँ पे अगर मैं एज टेबल करूंगा तो यहाँ पे मुझे एजेस के जो है वो स्कोर नजर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एज और नोड में आपको फर्क पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये नोड है, ये जो सर्कल है, ये जो कि जीन का नाम है, विच इज कॉल्ड एज द नोड, और ये जो एज है, ये वाली जो लाइन्स आपको नजर आ रही है, ये एज है। और इस एज को हम कंबाइंड स्कोर के लिहाज से जो है वो एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसके कंबाइंड स्कोर के लिहाज से। अब ये मेरे पास ये नोट टेबल आ गया मैंने जो कि इंपोर्ट किया था। द नेक्स्ट थिंग आई विल बी इंपोर्टिंग इज दैट एक्सेल फाइल जो कि हमने क्रिएट की थी, जिसमें हमने 0.05 p वैल्यूज को जो है वो एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू रखा था, जिसके बाद मेरे पास लिस्ट ऑफ जीन्स जो है वो 120 के करीब आई थी, ठीक है। और वो मैं कहाँ से इंपोर्ट करूंगा, आई एम गोइंग टू इंपोर्ट इट फ्रॉम इंपोर्ट टेबल फ्रॉम फाइल। यहाँ पे मेरी ये वाली फाइल मैंने एक्सेल फाइल इंपोर्ट की बनाई थी। आई एम गोइंग टू ओपन दिस। अब मेरे पास यहाँ पे ये सारी एक्सेल फाइल आपको पास नजर आ रही है, ठीक है। ये मेरे पास p वैल्यूज हैं और ये मेरे पास log fc वैल्यूज हैं। ये वाली जो दो चीजें हैं ये मैं अपने आगे पाथवे में हेल्प करूंगा, ठीक है। और ये जो जीन सिंबल है, ये जीन सिंबल बेसिकली क्या है, ये मेरा नोड्स हैं। मेरी तमाम की तमाम जो आगे एनालिसिस होगी वो इस जीन सिंबल पे डिपेंड करती है। अब मैंने ये सारे जीन सिंबल्स, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि हब नोड्स या हब जीन्स कौन से हैं और बॉटलनेक जीन्स कौन से हैं, ठीक है। सो मैं इसको की का सिंबल दे देता हूँ। की से मुराद कि ये मेरा वो वाला पैरामीटर है जिसके ऊपर मैं बाकी एनालिसिस करूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू पुट द की सिंबल एट दिस एंड देन आई एम गोइंग टू गिव इट ओके। अब ये टेबल लोड हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा टेबल जो है वो लोड हो गया। मैंने की सिंबल जीन्स के नेम को लिखा है क्योंकि जीन्स का जो नेम है वो बेसिकली नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो दो टेबल्स मैंने अपलोड किए, एक तो स्ट्रिंग से मैंने किया जो अपलोड टेबल, और दूसरा जो है वो मैंने एक्सेल फाइल से जो मैंने अपनी फाइल बनाई थी वो टेबल से डाउनलोड करके वो मैंने एक्सेल फाइल पे जो है वो अपलोड कर दी। अब यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पाथवे, अब आप इसको डिटैच व्यू भी इसके साथ है। आप इसको डिटैच व्यू करके इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक दिस डिटैच व्यू, अब मैं इसको देख सकता हूँ जूम इन और जूम आउट हो रहा है, ठीक है। आप अपने जीन्स को जो है वो इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक दिस डिटैच व्यू रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे अब जो मेन चीज़ आ रही है वो यहाँ पे अब आपको समझने वाली चीज़ है। ये मेन चीज़ है वो आपके पास लेफ्ट के ऊपर आप लोग देखें इसके होम पेज पे साइटोस्केप पे, तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही है एनोटेशन की, फिल्टर की, स्टाइल की और नेटवर्क की। एक नेटवर्क मेरे पास इंपोर्टेड हुआ है स्ट्रिंग इंटरेक्शंस का। अब मैं स्टाइल पे जाऊंगा, ठीक है। स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बॉर्डर पेंट, फिल कलर की ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ पैरामीटर सेट हैं। 3 ऑप्शंस आती हैं, बाय डिफॉल्ट व्यू, मैपिंग व्यू एंड बाईपास।
अच्छा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो इसने ब्लू रखा हुआ है इस नोड्स को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ब्लू नहीं बल्कि रेड करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ और देन आई सिलेक्टेड इट एज रेड कलर। ओके मैंने किया। अब ये मेरा जो नेटवर्क है ये रेड कलर में रिप्रेजेंट हो गया। अब इस नेटवर्क से मुझे सिर्फ जीन्स का नाम पता चल रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इस जीन्स में कौन से अप रेगुलेटेड है और कौन से डाउन रेगुलेटेड है। काइंडली अगर मैं अगर आप किसी भी स्टेप पे अगर आपको समझना है तो मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब तक समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं एम सर, आई ये नहीं समझ रहा, हम कैसे पता लगेंगे अप रेगुलेटेड कौन से, डाउन जी रेगुलेटेड जी, कौन से, मैं यही वो बता रहा हूँ वैल्यू जी के मैं अलावा? आपको यही बता रहा हूँ। ये वाली जो डायग्राम है, ये जो आपको पाथवे नजर आ रहा है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि अब रेगुलेटेड कौन से हैं और डाउन रेगुलेटेड कौन से हैं। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? यहाँ पे हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया देना पड़ेगा। वो कैसे देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पे आपने कलर चेंज किया उसके बीच में ये वाला जब आप ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आप अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया देंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया इस पे मैं करूंगा कि क्या करूंगा, जब मैं इस पर क्लिक किया तो आपके पास कॉलम की वैल्यू आई। मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना है लॉग एफ सी पे। लॉग एफ सी से मैं क्यों रखूंगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था लॉग एफ सी से आप उसकी एक्सप्रेशन लेवल को चेक करते हैं कि अगर वो वैल्यू माइनस में है तो उसका मतलब है कि वो डाउन रेगुलेटेड है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि वो अप रेगुलेटेड है। अब जब मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में लॉग एफ सी करूंगा और मैपिंग वेल टाइप पे जाके मैंने इसको कंटिन्यूस मैपिंग करनी है। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम दो सिर्फ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे मैपिंग में, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस मैपिंग से मुराद ऐसी मैपिंग, ऐसी वेरिएबल्स जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, यानी कि जैसे लॉग एफ सी में आप लोग देख सकते हैं कि ये जीरो से लेके माइनस से लेके एक रेंज ऑफ वैल्यूज हैं। डिस्क्रीट मैपिंग से मुराद आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, या तो जीरो होगी या वन होगी, ठीक है। तो ये वाला जो मेरी वेरिएबल होगा, ये वाला जो पैरामीटर होगा वो कंटिन्यूस मैपिंग होगा। अब मैंने कंटिन्यूस मैपिंग पे क्लिक किया तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये अब आपको नजर आ रहा है, ये मेरे पास करंट मैपिंग, ये अब आपको नजर आ रहा है। डिटैच व्यू में अगर इसको करूं तो ये वाली जो डायग्राम मुझे नजर आई है, तो इसमें ये वाला अगर आप देखें पैरामीटर, ये वाली इस वाली पोजीशन पे तो 6.69 पे जितनी वैल्यूज हैं वो रेड कलर वाली आ रही हैं। मेरे पास तीन कलर्स आएंगे, एक रेड होगी, एक वाइट होगी और एक ब्लू होगी, ठीक है। जो डार्क रेड होगी इसका मतलब है कि वो ज्यादा अप रेगुलेटेड है, जो डार्क ब्लू है उसका मतलब है कि वो ज्यादा डाउन रेगुलेटेड है, जो दरमियान में है व्हाइट वाले उसका मतलब है कि वो ना तो अप रेगुलेटेड है ना ही डाउन रेगुलेटेड है। सो इसके कलर के मुताबिक आप लोग ये जज कर सकते हैं और इस कलर को मैं इंटेंसिफाई भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, जब मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये एक विंडो बन गई, ओपन हो गई। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसको डार्क रेड और डार्क ब्लू दे दूंगा ताकि मुझे क्लैरिटी ज्यादा आसानी के साथ हो जाए। मैं कहता हूं कि मैं इसको से फॉर एग्जांपल इफ आई सिलेक्ट दिस वन, ओके मैंने किया और मैं इसी तरीके से मैं अगर इसको मैं इसको ज्यादा डार्क ब्लू करता हूँ, सो मेरे पास और आई सिलेक्ट ओके। अब मेरे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कलर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा आपको आसानी के साथ पता चल रहा है कि कौन से डाउन रेगुलेटेड है कौन से अप रेगुलेटेड है। रेड वाले मैंने आपको क्या कहा था, अप रेगुलेटेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो डार्क रेड है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे LTF वाला जीन जो है ये बहुत ज्यादा अप रेगुलेटेड है बिकॉज इसका कलर जो है वो ज्यादा रेड है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं ये वाला ITGAM, ये वाला जीन ये अप रेगुलेटेड तो है लेकिन दैट इज नॉट वेरी मच हाईली अप रेगुलेटेड। क्यों? बिकॉज इसकी लॉग एफ सी वैल्यू कम होगी, लॉग एफ सी वैल्यू 0 से करीब होगी, यानी कि 0.0 से 1 के करीब होनी चाहिए और इसी वजह से वो इसको लेस रेड कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये लोग देखें कि ये जो ये वाला जो है ब्लू कलर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डाउन रेगुलेटेड। द मोर द ब्लू, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो है मुझे ज्यादा ब्लू लग रहा है इसके निस्बतन, तो ये वाला जो है वो ज्यादा डाउन रेगुलेटेड जीन होगा इसके रिलेटिवली कंपेयर करेंगे तो इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको बच्चे बात? बच्चों यस सर, एनी आ गई। क्वेश्चन? ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट डाउन रेगुलेटेड एज वेल एज अप रेगुलेटेड जीन्स, ठीक है। सो उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि उसके बाद अब हम लोग करेंगे कि इसके जो है वो फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास बहुत सारी और ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पे हमारे पास शेप की ऑप्शन आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे नोड्स हैं ये नोड्स जो हैं वो सर्कल की फॉर्म में ना हो, ये इसकी फॉर्म में ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको शेप को चेंज करके एक्लिप्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये जो शेप आ रही है नोड्स की वो एक्लिप्स फॉर्म में आ रही है, ठीक है।
अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे लॉक नोड विथ एंड हाइट है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे जो नोड्स हैं, इसके जो सर्कल हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, यानी इसकी विड्थ और हाइट जो है वो इक्वली हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो इक्वल है। ठीक है, ओके, जस्ट ओके ओके। सो यहाँ पे आपको समझ आ गई ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने इसकी शेप, अब आप इसके अंदर बहुत सारी और भी फीचर्स हो सकती हैं, लेकिन एट दैट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गो इट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी में अगर मैं क्लिक करूंगा 255 बाय डिफॉल्ट है, अगर मैं इसको रखता हूँ कि 25 रखता हूँ तो ये लेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है ये बहुत कम ट्रांसपेरेंट हो गया। सो बाय मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी विजिबिलिटी ज्यादा रहे, तो मैं बाय डिफॉल्ट 255 ही रखूंगा। ठीक है, सो ये मेरे हो गए नोड्स। अब मैं चाहता हूँ एजिस पर, एजिस पे अब मैं जाऊंगा तो एजिस पे से क्या मुराद है, ये वाले जो इंटरेक्शंस हैं, ये वाली जो इंटरेक्शंस हैं, ये वाली एक नोड्स के दरमियान जो दूसरे नोड्स हैं, ये एजिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एजिस के कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, बट एट दैट मोमेंट मैं इसके कलर को यही रखता हूँ क्योंकि ये विजिबिलिटी के लिहाज से मुझे बेस्ट सूट करता है। अब मैं जाता हूँ इसकी विड्थ के ऊपर, जो मेन चीज़ है, यहाँ पे आप लोग इसके सोर्स के एरो को चेंज भी कर सकते हैं, इसकी लाइन की चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉलिड लाइन ये ही है, इसके अलावा आप और भी मुख्तलिफ लाइन्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉलिड लाइन ही सूटेबल रहती है इस नेटवर्क एनालिसिस में। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली है कि विड्थ को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करें। विड्थ को मैंने जैसे स्टार्ट में लेक्चर किया, मैंने आपको ये बताया था कि जो स्ट्रिंग का जो नेटवर्क एनालिसिस होता है वो उसके कंबाइंड स्कोर्स के लिहाज से बताता है। ठीक है, जो कंबाइंड स्कोर होगा वो उसकी विड्थ की एजिस को बताएगा, एजिस की विड्थ को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो कंबाइंड स्कोर हमने स्ट्रिंग से जनरेट किया था वो यूज होगा इस विड्थ की एजिस को रिप्रेजेंट करने में। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, बाय डिफॉल्ट 2 है, आई एम गोइंग टू फिल्टर इट आउट। मैं इसकी मजीद सिलेक्शन करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करके इस पे क्लिक करूंगा दरमियान वाले बॉक्स पे, एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस विद द कंबाइंड स्कोर, जो कंबाइंड स्कोर मैंने दिया था। ठीक है, कंबाइंड स्कोर अगेन वैल्यू इसकी क्या है, कंटिन्यूस वैल्यू है। ठीक है, अब आप लोग ये देख सकते हैं, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक एजेस आ रहे हैं, लेकिन ये एजेस बहुत ज़्यादा थिक हुए हैं। क्यों हुए थिक हुए हैं, क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट एक स्कोर दे दिया है। अब आप लोग इस पर क्लिक करें, ये जो सर्कल सा बना, ये जो एक ग्रिड बॉक्स सा बना रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। इसने बाय डिफॉल्ट 10 स्कोर दे दिया मिनिमम वैल्यू को और 30 दे दिया है मैक्सिमम वैल्यू को। अब मैं इसको चेंज करूंगा, चेंज करने के लिए मुझे इस पे जाना पड़ेगा। 10 की बजाय मैं इसको करता हूँ मिनिमम वैल्यू मैं दे देता हूँ 0.2, और मैक्सिमम वैल्यू पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको दे देता हूँ 5। ओके करूंगा एंड देन आई विल बी सेटिंग इट एज ओके। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो गई है। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो चेंज हो गई है इस तरह से कि यहाँ पे आप लोग देखें, अगर मैं इसको जूम इन करूंगा तो यहाँ पे आपको हर एक जो एज है, यानी कि ये वाली जो लाइन, इसको हम एज कहते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इसको समझने की जरूरत है, यू हैव टू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस एक्चुअली, कि ये वाली जो एज है ये लेस थिक है, ये वाली जो एज है ये ज्यादा थिक है। ठीक है, इससे मुराद ये है कि इन दोनों जीन्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, और उसके वो कैसे ज्यादा है वो हमें उसके स्कोर से पता चला। ठीक है, और इन दोनों जीन्स के जो दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है वो कम इंटरेक्शन हो रही है। और क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो हमें स्ट्रिंग से जो सॉफ्टवेयर जो कंबाइंड स्कोर मिला था उसके मुताबिक हमें पता चल गया कि इन दोनों जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एजिस को फिल्टर लगा के, हमने एजिस को क्राइटेरिया लगा के कंबाइंड स्कोर के बिना पर हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। हमें ये पता चला इस डायग्राम से कि कौन से जो जीन्स हैं वो ज्यादा इंटरेक्टिव हैं और कौन से जीन्स जो हैं वो कम इंटरेक्टिव हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाले जो दो जीन्स है SM SMAD 4 और FOX 3, ये ज्यादा इंटरेक्टिव है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनकी जो विड्थ की, इनकी जो एजेस है, इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा थिक है। ठीक है, the more the thick the edges are, the more interacted two genes between those edges are. ठीक है, अब तो ये बात सब समझ आ गई सबको? आपको एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं आगे मूव Yes, करूं। sir. ये सर बात जब आपको हम समझ आ गई? स्ट्रिंग पे, यस सर, जी क्वेश्चन है मेरा कि जब जी हम जी स्ट्रिंग पे वो इंटरेक्शन देखते हैं
तो हमारे पास कुछ कलर कोडेड लाइंस होती हैं, तो मतलब जितनी ज्यादा लाइंस होंगी डिफरेंट कलर्स की, हर एक लाइन एक रिप्रेजेंट कर रही होती है कि मतलब हाँ इनका जी। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, ये वो है। तो सर ये जो यहाँ पर विड्थ है, क्या ये रिप्रेजेंट करेगी कितने ज्यादा इंटरेक्शंस हैं इनके आपस में? हाँ, यहाँ पे बेटे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि नोड और एजेस में क्या फर्क है। नोड जो है वो बेसिकली आपके जीन सिंबल को रिप्रेजेंट करे, एजेस जो है वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक नोड और दूसरे नोड के दरमियान इंटरेक्शन कितनी है। पहले तो जब हमने इसको फिल्टर नहीं दिया था तो वो एक ही तरह की यूनिफॉर्म पैटर्न आ रहा था, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे नोड्स के दरमियान क्या इंटरेक्शन है और वो किस बेस पे हमने डिटेक्ट किया, वो उसके कंबाइंड स्कोर की बेस पे डिटेक्ट किया। अपने जब हमने कंबाइंड स्कोर को फिल्टर लगाया, यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड बीच सर्कल बॉक्स है सेंटर वाला, उस पर हमने फिल्टर लगाते हैं। तो उसके हमने फिल्टर लगाया तो हमें ये पता चला कि हमें हमारा जो जीन्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कितनी ज्यादा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और वो हमेशा एजिस के ऊपर जाके चेक होगी। यहाँ तक समझ आ गई आपको बात? यस सर आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आ रहा है, वो आ रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस जीन्स के अंदर कौन से हब नोड्स हैं और कौन से बॉटल नेक नोड्स हैं। हमारा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, हमारा जो मकसद है ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई करना जो कि दोनों हैं, यानी कि वो हब भी हैं और वो बॉटल नेक भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऐप आती है, यहाँ पे ऐप मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं, यहाँ पे गेटिंग अवेलेबल ऐप्स। यहाँ पे आपके पास करंटली इंस्टॉल्ड, तो मेरे पास कोई इंस्टॉल नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये इस सिस्टम पे साइटोस्केप डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे मैं एक जो ऐप जो हमने आगे इस्तेमाल करनी है वो है सेंटीस्केप के नाम से, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है। ओके अब मैं यहाँ पे इसको I don't know, there is a internet connection issue. Uh, let me check for installed app, checking for updates, getting available app. Uh, I am going to use again. आप में से अगर किसी ने साइटोस्केप डाउनलोड किया हुआ है तो काइंडली मुझे बता दें। No sir, I Have don't any? think so. So, okay, यहाँ पे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी थोड़ा हैवी है, तो इस वजह से प्रोबेबली दिस विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। दिस विल टेक सम टाइम के वो पर्टिकुलर ऐप जो है वो हम डाउनलोड कर लें। लेट्स सी के ओके बेसिकली कंप्यूटर जो है वो स्टक हो गया है। Let me see one thing. I'm going to save and quit. I'm going to save this as Cytoscape. Then I'm going to reopen it ताकि ये मेरा सिस्टम जो है वो टेस्ट साइटोस्केप के नाम से ही मैं इस फोल्डर में मैं सर्च करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू देन रीओपन दिस। वेट अ मिनट जस्ट, ताकि मैं इसके अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं वो मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर सकूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड द जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा वो ये है कि हमने हब और बॉटल नेक जीन्स को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द ऐप साइटोस्केप सेंटीस्केप। सो यहाँ पे जो हमारे पास साइटोस्केप के ऊपर ऐप्स की ऑप्शन आ रही होती हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी जो है हम लोग यहाँ पे जो ऐप है अपनी पर्टिकुलर जो आगे हमने एनालिसिस में करनी है वो हम कर सकें। Okay, just it's getting the latest version. Since this is a bit of heavy software, so it takes a bit of time. Okay,
So I'm just going to App Manager again. I'm just going to check it whether I have currently. I'm going to search the site Centiscape. Neither it is. प्लीज़ कैन यू लेट मी नो कि आप में से किसी के पास अगर ये इंस्टॉल्ड है. सो इस वक्त चूंकि इंटरनेट की इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट गेटिंग द एप्स विच इज़ बीइंग अवेलेबल ऑन दिस. सो अगर यहाँ पे किसी ने सेंटिस्केप यूज़ किया हुआ है, सेंटिस्केप साइटोस्केप, सो जस्ट लेट मी नो कि वहाँ पे वर्किंग है आपका. डॉक्टर साहब असल में अक्सर बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आईपीसी में, और यूनिवर्सिटी सिस्टम पे कोई वो नहीं कर सकता, लाइक सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते. जी जी, तो ये प्रॉब्लम है. So I'm actually also sitting in the IPC. So basically यहाँ पे जो है वो Centiscape basically हो नहीं रहा download. So I don't know how I'm going to continue this. बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इस वक्त इंटरनेट इशू की वजह से वो सारी कलेक्शंस जो है वो शो नहीं कर रहा. यहाँ पे कलेक्शंस में ऑप्शंस आती हैं, सो इस वक्त पर्टिकुलरली वो शो नहीं कर रहा कि विच ऐप इज़ करेंटली अवेलेबल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई डोंट नो और इस एनी तरह कोई ऑप्शन. जी जी सर, कोई इस तरह कोई जी इसकी कोई वीडियो या इस तरह कोई चीज़ मिल जाएगी यूट्यूब से, अगर वो वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ शो करवा दें कि. ओके 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 ओके, just wait a minute, I am going to I'm going to try it for the last time. मैं YouTube पे देखता हूँ. If I see के we have time sir, टाइम है हमारे पास. इजी सर देखें. ओके, टाइम है आप लोगों के पास. So sir, actually it's really informative and it's really like yeah. डॉक्टर अली, if you suggest कि मैं अपने सिस्टम से दोबारा लॉग इन हो सकता हूँ अपने अपने रूम में जाके, क्योंकि करंटली मैं इस वक्त आईपीसी में जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो वेदर इट वुड बी पॉसिबल. it's possible sir. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं दोबारा से लॉग इन होऊंगा. ठीक है. तो मैं प्रोबेबली मैं अपने सिस्टम पे जाके जो है वो वहाँ से लॉग इन करूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था वो सारी चीज़ें. तो यहाँ पे इस वक्त करंटली इशू आ रहा है. No worries, we are here. ठीक है We are here. ठीक है, मैं ओके. ठीक हो गया. Sure. So class, how was the session? So it was good. साइटोस्केप मैंने यूज़ किया हुआ है जस्ट फॉर, मैंने एक एनालिसिस करने थे, और वो ये था कि ये अलाइनमेंट फ्री टूल्स होते हैं. शायद कोकब ने किया हो. अलाइनमेंट फ्री टूल्स होते हैं, लाइक हम मेगा में वो करते हैं, अलाइनमेंट करते होते हैं नॉर्मली, जो आप लोग उसके साथ फेमिलियर हैं. तो उसमें मसल, क्लस्टर और इस तरह के अलाइनमेंट टूल्स हैं जो हम करते होते हैं. Alignment free tools भी available हैं, and one of the methods to use is this Cytoscape. So उसके साथ थोड़ा सा मैं familiar था, लेकिन जो हसीब साहब हैं, he is working with network analysis data.
the real data actually. So it's really informative. अच्छा, आप लोगों के अगर कोई questions है ना, so you can write in the text, you can ask directly. आप unmute करके directly भी question कर सकते हैं हसीब साहब से, and also you can write it in the text so that Mahnur Khan could like ask from the mentor. So ask freely to like this, to ask questions. Excuse me, sir, which semester is this? Next semester. Meaning, which semester is sitting over here in this meeting? यहाँ पे मिक्स हैं, असल में 6 सेमेस्टर भी हैं, उससे असल में मेरी बायोलॉजी की क्लास भी हैं और एनालिटिकल टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की भी हैं, तो देयर आर मिक्स लाइक 6 सेमेस्टर की भी हैं, आप लोगों की क्लास भी हैं और आपसे 2 सेमेस्टर जूनियर्स भी हैं. Just a little announcement. आप में से काफ़ी बच्चों ने हमारे उस पर रजिस्टर ही नहीं किया, मतलब यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म राउट किया था उसमें सिर्फ 13 ने रजिस्टर किया है. तो लाइक अगर हम लोग कोई सर्टिफिकेट वगैरह राउट करते हैं तो फिर हम लोग उन्हीं को करेंगे जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इस मीटिंग को किस किसने अटेंड किया है. तो काइंडली अपने आप को वहाँ जाकर रजिस्टर कर लें कि जस्ट इन केस इफ आई मेक सर्टिफिकेट्स फॉर यू पीपल, तो आप लोग उसको अवेल तो कर सके ना. जी जी एग्जैक्टली अभी टाइम है, अभी कर लें. मैं लिंक फॉर्म का चार्ट में भेज रही हूँ, जो जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उसको प्लीज फिल करें और अपना ईमेल प्रॉपर्ली लिखिएगा, उस ईमेल के ऊपर हम सर्टिफिकेट्स भेजेंगे. Assalamu alaikum class. I want to announce from the respectable mentor हसीब साहब के रेफरेंस है कि उनको इशू आ रहा है इंटरनेट में, and that he was in the last of the step in the cytoscape, और लेकिन अगर हमें कोई मौका मिला नेक्स्ट टाइम तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज इट वाज द एंड एट द एंड. सो ओवर टू मानूर खान. तो एज यू ऑल नो के कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, तो I'd like to thank Hasib Nassar. It was a very informative session. अभी भी जितना हुआ है, it was I guess very informative और इसके अंदर काफी नई चीजें सीखने को मिली हैं. तो it was one of the best webinars of life sciences department, I can say, and it was very interactive, which was the best thing about it. Usually the webinars are not this interactive. The speaker comes, gives his presentation, and we just ask questions from him. But in this session, it was very interactive as the speaker was constantly asking the students about if they're understanding it or not. So thank you so much, Sir Hasib Nassar, and thank you all the students for attending it. And thank you so much, Dr. Ali. Thank you so much. Thank you.